Hello students, welcome to session 6 on Introduction to Trigonometry. So our target today is to solve questions based on exercise 8.4 and we will solve some more questions which comes in CBSE occasionally. So firstly let us revise all the formulas we have studied in trigonometry, Introduction to Trigonometry for your level. So the formulas we studied were for trigonometric ratios in terms of the sides, but now you have to use the formulas here which are interconnecting the trigonometric ratios with each other. So the first one was reciprocal formula, sin theta is equal to 1 by cosec theta, या cosec theta into sin theta is equal to 1, cos theta is equal to 1 by sec theta, या sec theta into cos theta is equal to again 1, tan theta is equal to 1 by cot theta, or tan theta into cot theta is equal to 1. Then tan theta is equal to sin theta by cos theta in terms of sin and cos. Similarly, cos theta is equal to cos theta by sin theta. Then we studied three trigonometric identities. What were they? The first one was sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second one was sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. And the third one was cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. Now we will use these in solving the questions from the exercise 8.4. So the first question I have taken is actually this is example. I have written here question number 1, but this is not question number 1. This is example 15 from your textbook. Very important example. It always comes in CBSE examination, and there are chances that it may come again. So what is the question? You look at the question. Question is prove that sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 by sin theta minus tan theta. Now this question come in many forms, और you may ask to prove. ये भी प्रूफ करने के लिए बोल सकता है sec theta plus tan theta, या ये प्रूफ करने के लिए बोल सकता है 1 plus sin theta by cos theta, or you may be called to prove it is equal to cos theta by 1 minus sin theta. So let us see. So we will take the left hand side of this relation. So left hand side is sin theta minus cos theta plus 1 whole divided by sin theta plus cos theta minus 1. Now let us see what is given here. This is given here sec theta minus tan theta, 1 by sec theta minus tan theta, or sec theta plus tan theta. So I will start from here itself using the second identity. So what is the second identity? Second identity is related to sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. So I will convert first this given left hand side into sec in terms of sec theta and tan theta. तो sec theta और tan theta के टर्म्स में इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? देखिए यहाँ पर, if I divide the numerator and denominator by both by cos theta, I will get tan theta here and sec theta also. So dividing the numerator and denominator by cos theta, तो डिवाइड कर देता हूं. तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? यहाँ होगा sin theta by cos theta minus cos theta by cos theta plus of 1 by cos theta whole divided by sin theta by cos theta minus of cos theta by cos theta plus of 1 by cos theta. This will be equal to, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड किया है, तो cos थीटा से न्यूमरेटर को जब डिवाइड करेंगे तो इंडिपेंडेंटली सारी टर्म्स को डिवाइड कर दिया है. पूरा डिवाइड करिए या इंडिपेंडेंटली कीजिए, एक ही बात है. फुल डिनोमिनेटर आएगा न्यूमरेटर का cos थीटा अपॉन फुल डिनोमिनेटर आएगा डिनोमिनेटर का cos थीटा. यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, इधर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको. चलिए आगे बढ़ते हैं. sin थीटा बाय cos थीटा क्या होगा? tan थीटा हो जाएगा, और 1 बाय cos थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा हो जाएगा. तो 1 बाय cos थीटा को पहले लिख देता हूं मैं sec थीटा प्लस ऑफ sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा. एक ऑर्डर में लिखने के लिए ऐसा कर रहा हूं मैं, माइनस ऑफ cos थीटा बाय cos थीटा मींस माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय अगेन हियर. यहाँ पर भी इसी ऑर्डर में अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो कुछ इसी तरह से आएगा, लेकिन यहाँ माइनस फ्रंट में आएगा इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ. 1 बाय cos थीटा बाय cos थीटा को 1 लिया हमने, माइनस ऑफ sec थीटा ले लेते हैं 1 बाय cos थीटा,
और साइन थीटा बाय कॉस थीटा को प्लस ऑफ टेन थीटा। नाउ माय हाफ वर्क इज डन। अभी क्या करना है, आई विल रिप्लेस दिस वन यूजिंग द सेकेंड आइडेंटिटी। तो सेकेंड आइडेंटिटी से इसको रिप्लेस करता हूं तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ऑफ, in place of 1 I will replace using the second identity, so denominator will be as it is. Now second identity is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, or sec square theta minus tan square theta is equal to 1. इसको रिप्लेस कर देता हूं, तो यहाँ 1 की जगह रिप्लेस करूंगा, ब्रैकेट यूज करना होगा, माइनस साइन है तो sec square theta माइनस ऑफ tan square theta यहाँ आ जाएगा। अभी क्या होगा, द फर्स्ट ब्रैकेट विल बी एज इट इज सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा माइनस ऑफ, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगाएंगे तो सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा यहाँ आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा लेंगे तब। डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर विल बी 1 माइनस sec theta plus of tan theta. This complete is the denominator. Now I will take sec theta plus tan theta common from the numerator. So sec theta plus of tan theta is taken common from the numerator. So what I will have 1 in place of sec theta plus tan theta minus of this part is taken common. So I will have minus of sec theta minus tan theta only left here. And the denominator is 1 minus sec theta plus of tan theta. So finally what I got is, this is sec theta plus tan theta into, now open the bracket here, so I will get 1 minus sec theta plus of tan theta. Denominator also, in denominator also I am having the same term, 1 minus sec theta plus of tan theta. Now these brackets are multiplied here, so this will be cancelled. So I will get what? This is equal to sec theta plus of tan theta. So this is the first part of the proof. Actually this is what I got here, sec theta plus tan theta. ये मुझे मिल गया। अब इसकी हेल्प से बाकी सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको रब करके और इसके आगे का पार्ट करने जा रहा हूं सॉल्व। सो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए मैं कहां तक पहुंच गया था, मैं पहुंच गया था sec थीटा प्लस tan थीटा तक, यहां तक पहुंच गया था। अभी मुझे प्रूफ ये करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, sec थीटा प्लस tan थीटा मेरा जो आया हुआ है उसको मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में देख रहा हूँ sec थीटा माइनस tan थीटा है, तो इसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो sec थीटा माइनस tan थीटा ये मुझे लाना है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ sec थीटा माइनस tan थीटा। तो इन द न्यूमरेटर आई विल हैव a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में होगा sec थीटा माइनस ऑफ tan थीटा। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सेकंड आइडेंटिटी से, और डिनोमिनेटर विल बी sec थीटा माइनस tan थीटा। दिस इज प्रूव्ड। सो एक्चुअली दिस मच पार्ट वाज देयर ओनली इन द एग्जांपल। एग्जांपल में केवल यहां तक है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ था, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाए। यहाँ खत्म नहीं हो रहा है तो यहाँ पे खत्म करने के लिए आपको 2 स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सारे जो है इनसे ही आ रहे हैं। यहाँ आप अगर आप रिप्लेस कर दें, क्या रिप्लेस कर दें, sec थीटा की जगह 1 बाय cos थीटा, यहाँ sin थीटा बाय cos थीटा, तो आपको ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। और अगर इसमें आप जो है 1 बाय cos थीटा और यहाँ पर क्या है sin थीटा बाय cos थीटा रिप्लेस कर दें तो ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। तो याद रखिएगा 4-5 तरह से ये प्रूफ जो है आता है जो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 8.4। तो यहाँ एक्सरसाइज जो है 8.4 का जो है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन किया है मैंने। इसके पहले वाले सेशन में, सेशन 5 में मैंने 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिए हुए थे। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते से यहाँ पर एंगल्स आपको जो है वैल्यूज में दिए हुए हैं, तो इन वैल्यूज को क्या करना है आपको याद होगा। 63 प्लस 27 करके देख लीजिए क्या हो रहा है, 63 प्लस 27, 63 प्लस 27, दिस इज 90। अगेन 17 प्लस 73, अगेन दिस इज इक्वल टू 90।
इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते थे, एक को रिप्लेस करना है किसी एक को यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ले लेता हूं, इसको LHS लिख देता हूं, LHS, या सिंपली ऐसे ही ले लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर 27 होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, डिग्री है ये, डिग्री में दिया हुआ है। तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर, तो सेकंड वाला मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 27, तो 27 की जगह मैं लिख दूंगा 90 माइनस 63, यहाँ से रिप्लेस कर लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर है, इसमें फर्स्ट वाले को रिप्लेस कर देता हूँ, तो कॉस स्क्वायर 17 की जगह क्या आ जाएगा, 17 इज इक्वल टू जाएगा 90 माइनस 73 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 73। एक को रिप्लेस करना है, मैंने बोला है दोनों में से, तो न्यूमरेटर में से एक को और डिनोमिनेटर में से एक को रिप्लेस किया मैंने। तो न्यूमरेटर हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस, यहाँ स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और इसको सोचिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 63, तो कॉस ऑफ 63 हो जाएगा ये, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 73 है, तो cos 90 माइनस 73 इज इक्वल टू साइन 73, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस ऑफ cos स्क्वायर 73। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले से आया है, आप फॉर्मूला चाहे तो लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। तो ये फॉर्मूले यहाँ लगे हैं। अब जरा इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लगा दीजिए जल्दी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1, तो इक्वल टू 1, 1 बाय 1। यहाँ पर थीटा सेम है देखिए दोनों जगह, तो इसलिए फर्स्ट आइडेंटिटी लगा जा रही है। ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी पढ़ सकते हो अगर आपने एक के फॉर्म में इसको याद किया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ थोड़े से एकदम डायरेक्ट है, कुछ थोड़ा सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से 9 अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एंड अभी हमने किया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेकंड आइडेंटिटी से डायरेक्टली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो मेरा आंसर होगा 9। तो आप बुक में जो है इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है सेकंड वाला देखिए, सेकंड में हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसके भी ऑप्शंस दिए हुए 4, तो इसके लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट यानी साइन और कॉस में रिड्यूस कीजिए। सिंपलेस्ट यानी साइन और कॉस बोल रहा हूँ। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को करते समय अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आप उसको साइन और कॉस में रिड्यूस कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस ऑफ 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कॉस और साइन के फॉर्म में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस ऑफ कोसेक की वैल्यू 1 बाय साइन थीटा। एलसीएम ले लेते हैं दोनों ही ब्रैकेट में अलग अलग, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, इधर 1 है तो 1 की जगह कॉस थीटा आएगा, तो ऊपर क्या जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसको अगर मैं ऑर्डर में लिख दूं तो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। इसी तरह से यहाँ पर सेकेंड वाला जो ब्रैकेट होगा, यहाँ पर देखिए 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 ही है, यहाँ साइन थीटा है, तो एलसीएम साइन थीटा होगा, तो 1 की जगह पर यहाँ साथ में मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा प्लस बाकी चीजें चेंज नहीं होंगी न्यूमरेटर में, कॉस थीटा माइनस 1। तो आपका देखिए न्यूमरेटर्स दोनों एक जैसे आ गए हैं, केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है। यानी यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ 1, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ माइनस 1। तो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में आ गया ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इनको मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो नीचे देखिए, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन का निशान है, तो नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। और न्यूमरेटर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको एक इसको सपोज करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, और b सपोज करना है 1 को, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर।
इसको रिवर्स अप्लाई करके देखिए, ये a ये b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, देखिए आ रहा है वही। अभी आप इसमें इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैसे एक्सपेंड किया, -1 होगा 1 का स्क्वायर। ये कैसे एक्सपेंड किया हमने, ये एक्सपेंड किया a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। टर्म को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्लस का सिंबल है वहां। और अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर साइन थीटा कॉस थीटा ही होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अभी देखिए जरा, अब क्या होगा, आगे कैसे सॉल्व होगा ये, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस वाले पार्ट की जगह मैं 1 रख सकता हूँ फर्स्ट आइडेंटिटी से। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये +1 -1 कैंसिल हो गया, तो कितना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो आंसर आ गया 2। तो यहाँ आपको बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो सी वाला आंसर करेक्ट है। इसके अलावा भी वहां 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन 2 क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, नहीं बनते देन यू कैन डिस्कस इट विथ मी। तो आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ कुछ प्रूफ्स दिए हुए हैं, तो उन प्रूफ्स को हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया, ये प्रूफ दैट्स वाले क्वेश्चन है। प्रूफ दैट, तो यहाँ दिया हुआ है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको प्रूफ करना है तो आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या राइट हैंड साइड, दोनों तरफ से भी कहीं भी से भी प्रूफ कर सकते हैं। और अगर दोनों तरफ से कहीं प्रूफ नहीं आ रहा है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, राइट भी सॉल्व करना है। हो सकता है आप एक बीच की पोजीशन में पहुंचेंगे जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो वैसे भी प्रूफ होता है। तो इसको देखिए, अगर मैं लेफ्ट से सॉल्व करता हूं, यहाँ स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये सॉल्व नहीं होगा, या बहुत लंबा जाएगा सॉल्व होने में थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2 cosec थीटा कॉट थीटा बनेगा, और फिर वो प्लस जो हो रहा है वो उसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी हम यूज नहीं कर पा रहे। स्क्वायर करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है लेंथी हो जाए, तो इसकी जगह इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म, मैंने बोला था आपको क्या करना है हमको, तो हम इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड है मेरा cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए मैं इसको चेंज करता हूं जल्दी से, तो होल स्क्वायर यहाँ अपनी जगह रहने दीजिए, cosec थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये कॉट थीटा का फॉर्मूला है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही स्क्वायर को अपनी जगह पे रहने दीजिए, तो साइन थीटा हो गया यहाँ, और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर दोनों में साइन थीटा है तो कोई चेंज नहीं आया, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अभी जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर होगा अपॉन नीचे का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, नीचे का स्क्वायर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर हम बीच में लगा सकते हैं, थीटा पे नहीं लगेगा स्क्वायर। अभी देखिए यहां से अब कितना आसान हो रहा है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि ये पूरा कॉस में आ रहा है, तो यानी साइन हटाना चाहिए हमको, पूरा कॉस में आ रहा है राइट साइड, तो हटा देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये तो होल स्क्वायर है, लेकिन इसको देखिए यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस थीटा आपका आ चुका है, यानी इसकी एक पावर कैंसिल होने वाली है। तो इसकी एक पावर कैसे कैंसिल होगी, तो नीचे देखिए, तो नीचे जो है हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर तो होल स्क्वायर है, इसको हमको कुछ नहीं करना चाहिए, तो नीचे हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोच सकते हैं। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अभी यहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए की जगह 1 है और बी की जगह कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
तो देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया, तो इस पूरे ब्रैकेट से यहाँ इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, वही बचेगा जो आपको पूछा गया था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू RHS। तो यही आपको प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से बड़े आसानी से देखिए ये सॉल्व हो गया। तो राइट साइड पे नजर रखना, राइट साइड में कि हमको प्रूफ क्या करना है, किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उसके हिसाब से सोचते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आप सही जगह पर, सही डिसीजन पर, सही स्टेप पर पहुंचते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। ये प्रूफ करने की बोल रहा है। बुक में ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहला काम होगा, आप इसमें ब्रैकेट लगा लेंगे या डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, जहां डबल टर्म है वहां। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर देते हैं। तो LHS क्या है इसका, LHS है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। तो मेरे पास यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, तो LHS आपका यही है। मैं सीधे सेकंड स्टेप लिख रहा हूं। तो सेकंड स्टेप में हम LCM ले लेते हैं इसका। तो LCM लेंगे तो क्या होगा, यहाँ cos a इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा LCM, दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये LCM मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, तो ये पार्ट यहाँ और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा cos a इंटू cos a, तो cos स्क्वायर है प्लस ऑफ यहाँ 1 प्लस साइन ए है, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम इसको जो है एक्सपेंड कर देंगे ऊपर, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता अभी कुछ है नहीं, तो ऊपर एक्सपेंड केवल यहाँ पर होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लगा देते हैं। तो ये हो गया cos स्क्वायर है प्लस ऑफ यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर में हमने कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, ये क्या होगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। तो पहले आप चाहे तो इसको साथ में लिख दीजिए, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 इंटू साइन ए है यहाँ पर, होल डिवाइडेड बाय क्या है, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए है। अब क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 फर्स्ट आइडेंटिटी से, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, यहां पर क्या जाएगा 1 प्लस 2 4 साइन ए। यही गलती कर देते हैं, यहाँ 1 प्लस 1 2 होगा प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए अलग है, तो यहां जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। तो ध्यान रखिएगा ये ऐड करते समय नंबर से ऐड ना हो जाए। तो cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। तो देखिए यहाँ sec a आ रहा था, 2 यहाँ आ रहा है दिख रहा है मुझे, cos a भी है यहाँ, cos a यानी 1 बाय cos a है, तो sec a हो जाएगा, तो यानी सब कटने वाला। तो देखिए सब कट गया, ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो ये क्या आएगा 2 बाय cos a, तो ये हो जाएगा 2 बाय cos a। तो 1 बाय cos a का फार्मूला क्या है, रेसिप्रोकल, तो sec ऑफ a, तो ये इसका रेसिप्रोकल फार्मूला हो गया। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जितने हमारे ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतने अच्छे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि हम इसको लेफ्ट साइड को पूरा साइन और कॉस में रिड्यूस कर लें, तो साइन और कॉस में रिड्यूस होके ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और एक तरीका है, एक तरीका और दूसरा क्या है कि आप इसको कॉट को tan में चेंज कर लीजिए, पूरा tan में चेंज कर लीजिए, सब कुछ tan में चेंज कर लीजिए। तो साइन और कॉस वाला आप करके देखिए, तो मैं इसको पूरा tan में चेंज करके करता हूं, तो एक नया तरीका हो जाएगा आपके पास। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो मैं इसी में डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं यहाँ, ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 बाय tan थीटा, cot थीटा की जगह
प्लस ऑफ ऊपर हो जाएगा 1/tan थीटा अपॉन नीचे 1 - tan थीटा। तो इस तरह का कुछ हो जाएगा ये। इसमें डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1/tan थीटा। यहाँ 1 है और यहाँ tan थीटा है, तो एलसीएम होगा दोनों का tan थीटा, और यहाँ tan थीटा मल्टीप्लाई होगा तो tan थीटा माइनस 1/tan थीटा प्लस ऑफ यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 1/tan थीटा नीचे आ जाएगा और 1 - tan थीटा ये आया। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है, देखिए जरा, ये tan थीटा पलट के ऊपर जाएगा तो ये जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा। अभी ये tan थीटा माइनस 1 और 1 - tan थीटा को अगर आप देखेंगे तो यहाँ केवल माइनस साइन का फर्क है। तो मैं इसमें से अगर 1 - tan थीटा कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या बचेगा, तो उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। देखिए एडजस्ट करके लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा। सेकेंड टर्म को पहले लिख दिया है मैंने, और इसको मैं देखिए क्या कर रहा हूं, यहाँ पर 2 माइनस डाल रहा हूं। माइनस अपॉन माइनस क्या होता है, प्लस। तो एक माइनस ऊपर वाला ये रहा, और नीचे वाले माइनस को यूज कर रहा हूं मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई करने में। तो यहाँ जाएगा 1 - tan थीटा, और ऊपर क्या बचा, माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। बात समझ आ गई होगी आपको। 2 माइनस लिए, एक ऊपर एक नीचे, नीचे वाला माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाला अपनी जगह पर रह गया। अब इसमें से मैं 1 अपॉन 1 - tan थीटा को बाहर कर देता हूं, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/tan थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हो, तो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 - tan थीटा। अभी ये क्या होगा, इसका फिर एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम दोनों का क्या आएगा, यहाँ पर अपॉन में 1 है, कुछ नहीं है, तो tan थीटा होगा एलसीएम, और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ 1 होगा, और यहाँ पर tan क्यूब थीटा हो जाएगा, tan क्यूब थीटा, और यहाँ माइनस। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ 1 - tan थीटा है और यहाँ 1 - tan क्यूब थीटा। तो एक पार्ट यहां से निकल के इससे कैंसिल होने वाला है। कैसे होने वाला है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दीजिए यहाँ। ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, आपको पता है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है ना, पॉलिनोमियल्स में पढ़ी हुई है आपने। चलिए तो लगा दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 - tan थीटा, और यहाँ पर न्यूमरेटर हो जाएगा 1 - tan थीटा इंटू a माइनस बी हो गया, a 1 है और b tan थीटा है, यहाँ भी रख दीजिए वैल्यू। तो यहाँ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा, और प्लस a और b यानी tan थीटा 1 और tan थीटा। तो ये वैल्यू आ गई। अपॉन में क्या है, अपॉन में tan थीटा है। अब देखिए ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, और आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व होने वाला है। अब क्या है आपके पास इस tan थीटा को सबके नीचे सेपरेट लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, तो एक tan थीटा कट जाएगा, प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा, तो 1 आ जाएगा। अब tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा रख दीजिए, तो रखिए। तो यहां पर जब मैं रखूंगा, ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा जब रखूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, प्लस ऑफ ये sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा प्लस 1। पहले दो का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि 1 सेपरेट हमारा दिख रहा है यहाँ पर, तो 1 प्लस यहाँ पर ये दो का एलसीएम लिए, तो ये हो गया sin थीटा cos थीटा, और ये क्या होगा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इक्वल टू कितना आया, इक्वल टू आया 1 प्लस 1/sin थीटा cos थीटा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो देखिए ये आ गया आपका 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, या 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो ये हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, बड़ा ही जाता है इसका प्रूफ। अगर आप यहाँ sin थीटा अपॉन cos थीटा रख के करते हैं शुरू में,
टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तब भी आपको एलसीएम लेना है और ये क्वेश्चन लेंदी ही होगा और इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी तब भी यूज होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए, आपने देखा होगा एक्सरसाइज 8.4 के, और काफी लंबा ये वीडियो हो गया, इसलिए जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं, आगे के क्वेश्चंस हैं, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ओके चिल्ड्रंस, हैव ए गुड डे, बाय।